Jai Hind, Jai Bharat to everyone. Students, I hope you all are fit, fine and safe at home. Welcome to our online education. Myself Sengundar Sulakshna and I will be teaching you economics. So students, today we are here to see standard 11th, chapter number 2, fundamental concept and terminology. As you all know, we have already seen one part of this chapter. So today we are here to see the part 2 of the chapter. So students, without wasting the time, let us move on with the short discussion about the revision of the previous video, what we have seen on the previous video. So let us have a short revision. So previously we have seen about the introduction of the portion, and then we have seen about the price and value in a very detailed manner. So what was we have seen in the introduction? In introduction, we know that on the day-to-day life of the study of economics, we deal up with many basic concepts and terms such as goods, services, price, value, factor of production, trade cycle and many more concepts. So it is very mandatory to make the portion very clearly understand that what that things are meaning and what are the real mean in the economics. So for that purpose, we are going to see up the portion of this chapter in a very detailed manner that we have seen in the introduction. After that, we have seen about the portion of the price and value. So first of all, if you are seeing the price and value, most probably people consider the price and value as the same meaning, but in economics it is made clear that the price and value are not having the same meaning. It is having a little bit difference between both of them. Both are totally different from each other. So how they are different? For knowing that, we must know the economic terms in a very detailed manner. So first of all, we have seen about the value. If you are seeing the value, the portion value means the value can be understood by bifurcating it in a very two different manner. First is use value and second is exchange value. So let us see that in a very detailed manner. What is use value? Use value means when a person is using something according to its need. According to him, the use value mean to him or changes to. According to the individual, the use value changes. For example, so usage of the water, the usage of the air, the usage of the sunlight. So this changes according to the person or the individual. The food, okay, the air, the water, this as the usage value. According to our need, we use it, and that is why it is considered as usage value. After that, we have seen the exchange value. Exchange value means when a commodity is being exchanged with another commodity. So the worth of this commodity is becoming the value of that commodity. That is considered as exchange value. For example, we have seen if you are having a 1 kg of wheat, and if you are exchanging that wheat with 1 kg rice, then the worth value, exchange value of the wheat is 1 kg rice. In this manner, whenever a factor is being exchanged with another factor, and that another factor's value is considered as the exchange value. Now, there is always been a relationship between the exchange value and the use value. If you are seeing, if the use value of a particular good is there, and we cannot say that it must be having the exchange value. अगर कोई प्रोडक्ट का यूज वैल्यू है तो उसका एक्सचेंज वैल्यू भी होगा, ऐसा नेसेसरी नहीं है. बट if a thing is having the exchange value, then it can have the use value. जो जिसका exchange value होता है उसका use value भी compulsorily होता है. So how it can be known in a very better manner? You know that the sunlight, the air, the oxygen, these all things are being unlimitedly, abundantly means बहुत ज्यादा तादाद में हमें सप्लाई में मिलता है, इसीलिए उसका यूज वैल्यू तो ज्यादा है. हम ऑक्सीजन, सनलाइट, पानी, खाना इसके बिना तो रह नहीं सकते, बट ये हमें सब ज्यादा मिलता है. जैसे सनलाइट हमें बहुत ज्यादा मिलता है और कहीं पे भी मिल सकता है, अनलिमिटेड अबेंडेंट सप्लाई. अगर कोई बोलेगा ये 10 रुपए में तुझे सनलाइट दूंगा, यू विल गो नो, बिकॉज यू आर गेटिंग इट इन अ फ्री मैनर. सो इन दिस मैनर जिसका अनलिमिटेड सप्लाई होता है उसका अगर यूज वैल्यू ज्यादा हो तो भी उसका एक्सचेंज वैल्यू नहीं होता है. बट एक्सचेंज वैल्यू जब डिमांड हो
और उस टाइम पे उस प्रोडक्ट का स्कैरसिटी देखा जाए तो उसका एक्सचेंज वैल्यू देखा जाता है। उसका बेस्ट एग्जांपल पैंडेमिक में हमने ऑक्सीजन का देखा। ऐसे तो ऑक्सीजन बहुत फ्री में मिलता है, हमें उसकी यूज वैल्यू थी बट हमें उसकी कभी एक्सचेंज वैल्यू देना नहीं पड़ा। बट जब लोगों को ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी उस टाइम पे ऑक्सीजन इतना सप्लाई में नहीं देखा गया, स्कैरसिटी आ गई, उस टाइम पे उसका एक्सचेंज वैल्यू डिसाइड किया गया और वो बेचा भी गया। आफ्टर दैट वी हैव सीन द वाटर। जब वाटर बहुत अबेंडेंटली मार्केट में मिल रहा था सफिशिएंटली, उस टाइम पे पानी का फ्री में हर जगह परब दिखता था, बट जैसे जैसे वाटर कम होता गया आज 10 रुपीज 20 रुपीज के बॉटल में बेचा जाता है। तो यूज वैल्यू जब होता है अनलिमिटेड सप्लाई तब उसकी एक्सचेंज वैल्यू नहीं देखा जाता, बट एक्सचेंज वैल्यू तब डिसाइड होता है जब डिमांड और उसकी स्कैरसिटी देखी जाए तो उसकी जो है एक्सचेंज वैल्यू देखा जाता है। इन शॉर्ट वी कैन से दैट एक्सचेंज वैल्यू और यूज वैल्यू दोनों को देखने के बाद वैल्यू मीन्स अ नेट वर्थ ऑफ एनी प्रोडक्ट that has been exchanged with another product is considered as the value of that portion। जो कभी भी किसी के साथ भी एक्सचेंज होने के लिए एक वैल्यू रखता है उसे जो है वैल्यू बोला जाता है। नेक्स्ट वी हैव सीन अबाउट द प्राइस। व्हाट इज प्राइस? प्राइस का मतलब whenever a product is having the monetary value that is considered monetary consideration that is considered as price। जैसे कि आप पानी का बॉटल लेने जाते हो, मनी में उसको आप इवेल्युएट कर सकते हो 20 रुपीज, ठीक है। आप कोई बुक लेने जाते हो तो 10 रुपीज। तो जो भी चीजों का मनी में उसकी कंसिडरेशन प्राइस दिया जाता हो तो उसे प्राइस बोला जाता है, जबकि वैल्यू ऐसा नहीं होता है। वैल्यू टाइम के हिसाब से सेट होता है या बढ़ता या घटता देखा जाता है। आज के टाइम पे हर एक चीज का प्राइस ही ज्यादातर देखा जाता है। सो अप टिल दैट वी हैव सीन इन अ वेरी detailed manner. So now without wasting the time, let us move on with the further portion from the textbook PDF in a very detailed manner. So students, now let us move on with the today's portion. So today we are going to see about the goods and services. So goods and services हम economics में बहुत ज़्यादा use करते हैं, तो इसकी meaning क्या है? Let us know that. First one is goods. Commodities which have physical existence are called goods. In economics, they are meant to satisfy the need of consumption. गुड्स का मतलब जो भी कमोडिटी जिसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस हो, जिसे देखा जा सकता हो, उसे कहीं ना कहीं जो है गुड्स बोला जाता है। फॉर एग्जाम्पल ये पेन का बॉक्स, यू कैन सी दैट दिस इज अ बॉक्स ऑफ पेन। तो फिजिकली हम इसे छू सकते हैं, देख सकते हैं और इवन टच कर सकते हैं। तो फिजिकली अभी इसको हम लाए क्यों है? क्योंकि हम इसको लिख के अपनी नीड्स को कंज्यूम करने के लिए, सेटिस्फेक्शन के लिए। आइदर वी कैन से दैट वाटर बॉटल, इसको हम फिजिकली टच कर सकते हैं, इसका एक एग्जिस्टेंट है। रेदर देन दैट हमारी फिजिकल नीड को हमारी जो कंजम्पशन के लिए हमने ये खरीदा है। तो इस तरीके से कोई भी कमोडिटी जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस हो, जो हमारे नीड्स को सेटिस्फाइड करने के लिए, कंज्यूम करने के लिए हम लाते हैं, उसे गुड्स बोला जाएगा। जैसे कपड़े, चॉकलेट, स्प्रे, हर चीज जिसको हम टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, दैट इज कंसिडर्ड एज गुड्स। सेकेंड इट इज सर्विसेज। सर्विसेज थोड़ा बड़ा है। लेट अस सी दैट commodities which are intangible and do not have physical existence are called services. In economics they are meant to satisfy the need of human life. So services की अगर हम बात करते तो ये intangible होता है। intangible यानी इसे देखा नहीं जा सकता, इसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता है, ये इसीलिए सर्विस माना जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम ये बोले आप अभी मेरे पास पढ़ रहे हो, मैं आपको सर्विस प्रोवाइड कर रही हूँ, मैं आपको पढ़ा रही हूँ, बट अगर आप किसी को ये दिखाने चाहो कि मैंने कैसे पढ़ा, आप वीडियो दिखा सकती हो, इट इज़ एन फिजिकल पोर्शन। बट मैं जो आपको नॉलेज दे रही हूँ, आपने ये नॉलेज ले लिया, उसके बाद आप किसी को दिखा सकते हो आपके दिमाग में कितना नॉलेज स्टोर हुआ? नो। सो सर्विस का मतलब जिसका फिजिकल कोई चीज़ ना, डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर चेक करके आपको दवा देता है, कैसे उसने आपको दवा दिया, उसने कैसे चेक किया, इसको आप बता सकते हो? नो। तो सर्विसेज का मतलब जहां पे उसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस ना हो, जो इनटेंजेबल हो, जो देखा नहीं जा सकता हो, उसे कहीं ना कहीं सर्विस बोला जाता है। इकोनॉमिक्स के अंदर हमारे कुछ नीड्स को सेटिस्फाइड करने के लिए हमें सर्विसेज लेना पड़ता है। सो इकोनॉमिक स्टडीज एक्टिविटी pretending to production, consumption and distribution of goods or services. The nature of goods and services is different through both are important in
इकोनॉमिक की अगर हम बात करते हैं तो इसमें बहुत सारे एक्टिविटीज होते हैं, जैसे प्रोडक्शन करना, चीजों को बनाना, कंज्यूमशन जैसे हम लाते हैं उसको कंज्यूम करते हैं, गुड्स की डिस्ट्रीब्यूशन करना एक जगह से दूसरी जगह, जैसे पेन बनी होगी कहीं और वहां से मेरे तक पहुंचने के लिए डिस्ट्रीब्यूशन देखना, रेदर देन दैट सर्विस किस देखना। इस तरीके से नेचर ऑफ गुड्स और सर्विस जो है बहुत ही डिफरेंट है, गुड्स अलग है और सर्विसेज अलग है, ठीक है। बट यहाँ पे दोनों का जो डिफरेंट है उसको समझने के लिए हमें कहीं ना कहीं इकोनॉमिक्स में दोनों की कितनी इंपॉर्टेंस है ये समझना भी बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। Next paragraph I'm going to read, listen it out carefully. Food is a good commodity but cooking is a service. But of goods or stock or goods can be measured cardinally. Service generally cannot be measured in cardinally quantitative numerical terms. However, the time spent after providing a service can be measured. The impact of a service is satisfaction of human wants is also abstract. For example, the need for knowledge and curiosity is satisfied by the service of education. However, the exact contribution of the services of education in knowledge creation is abstract. However, a book is a good and it may be possible to tell about the amount of information obtained from the book. ठीक है, सो यहाँ पे फूड की अगर हम बात करते हैं वो एक गुड है, हम खाना जैसे बना देते, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला खिचड़ी बना है, वो खिचड़ी को हम देख सकते हैं फिजिकली, तो वो फूड कमोडिटी है। बट उसको जैसे पकाया गया, वो जब प्रोसेस हो रहा था, जैसे पक रहा था, उस टाइम पे किस तरीके से वो पका हुआ हम बता सकते हैं? नो, दैट इज अ सर्विस, ठीक है। वो एक सर्विस, कुकिंग एक सर्विस माना जाता है। मॉम जो कुकिंग करते हैं वो सर्विस है, उसको हम बता नहीं सकते, ठीक है। हम उसको देख नहीं सकते, देख नहीं सकते इन द सेंस टच नहीं कर सकते फिजिकली। मॉम कुकिंग करते हैं तो जैसे तपेली रख देते तो वो कुकिंग हो गया? नो, उसके पीछे मम्मी की जो एनर्जी लगती है दैट इज डिफरेंट ना। सो कुकिंग इज अ सर्विसेज। सो यूनिट ऑफ गुड्स और स्टॉक जो भी मेजर किया जा सकता है, जैसे अभी इसमें कितना पेन है पूछो तो आप बोल सकते हो एक पेन है। सो जिसे हम मेजर कर सकते हैं उसे कार्डिनली जिसे मेजर कर सकते हैं उसे गुड्स बोला जा सकता है। बट खाना खाने के बाद अगर मैं आपको पूछूं आपको कितना खाना अच्छा लगा, आप बोल सकते एक अच्छा लगा, दो अच्छा लगा, नो, तो उसका कोई मेजरमेंट नहीं होता, क्वांटिटेटिव नहीं। आप इतना बोल सकते हो बस अच्छा लगा, फीलिंग गुड, पेट भर गया। तो ये सारी जो इमोशंस जो सेटिस्फेक्शन बाहर निकलता है वो सर्विसेज के थ्रू देखा जाता है। हाँ, बट आप ये बोल सकते हो सर्विस के पीछे आपने कितना टाइम स्पेंड किया ये आप मेजर कर सकते हो। जैसे आपने अभी मेरे एजुकेशन में वीडियो देखने के लिए कितना टाइम स्पेंड किया, 20 मिनट्स, 30 मिनट्स, ऐसा आप टाइम बता सकते हो। बट कितना आपको समझ में आया आप कैसे बता सकते हो? हाँ, मुझे 10 समझ में आया, मुझे 9 समझ में आया, ऐसा बोल सकते हो? नो, यू कैन से दैट मुझे अच्छे से समझ में आया। सो ये एक सर्विस प्रोवाइडिंग जो होता है उसको मेजर जल्दी से किया नहीं जा सकता। बट उसका इम्पैक्ट क्या होता है, कहीं ना कहीं हमारे जो वांट्स है वो एब्स्ट्रैक्टली कंप्लीटफुली हम उसकी सेटिस्फेक्शन की ओर देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल नॉलेज, कोई चीज जानने की नॉलेज जो क्यूरियोसिटी है वो एजुकेशन के थ्रू कंप्लीट किया जा सकता है। हाउएवर अगर हम ये पूछे कि एजुकेशन की कंट्रीब्यूशन नॉलेज में कितना है तो उसे कोई रेशनली बता नहीं सकते। हम ये बोल सकते हैं कि मुझे एजुकेशन से 90% नॉलेज मिला है, वी कैन नॉट मेजर दैट, ठीक है। हमारा नॉलेज हर एक, दैट्स वाई वी कहते हैं कि नॉलेज जो है वो एक ओशन की तरह होता है, ठीक है, जो कभी भी मापा नहीं जा सकता। तो कहीं ना कहीं सर्विस भी इसी तरीके से जिसे हम मेजर नहीं कर सकते बट हम सेटिस्फाइड से बोल सकते कि वो कितना है और कितना नहीं है। हाउएवर इसके बाद अगर हम देखें बुक, अब नॉलेज में एजुकेशन में जो बुक होता है वो क्या होगा, गुड्स होगा या सर्विसेज होगा? तो वो गुड होगा क्योंकि हम उसको टच कर सकते हैं और बुक को देखने के बाद हम ये बोल सकते हैं उसमें कितने पेजेस है और वो कितना नॉलेज देने वाला है। बट उसके ऊपर से जो टीचर हमें एक्सप्लेन करते वो सर्विसेज के ऊपर हम कार्डिनली मेजर नहीं कर सकते। तो इस तरीके से गुड्स यानी जो देखा जा सकता है, छुआ जा सकता है और उसकी वैल्यू मेजरिंग में हो सकती है, 1 2 3 ऐसा हो सकता है, उसे गुड्स बोला जाता है। जबकि सर्विसेज जिसे हम फील कर सकते हैं, सेटिस्फाइड हो सकते हैं बट उसकी मेजरमेंट नहीं हो सकती, उसे सर्विसेज बोला जाता है। ह्यूमन सेटिस्फेक्शन के लिए सर्विसेज की जरूरत रहती है। सो नाउ टाइप्स ऑफ गुड्स, तो यहाँ पे अब हम टाइप्स ऑफ गुड देखेंगे। फर्स्ट वन इज द वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज इन इकोनॉमिक्स कैन बी क्लासिफाइड एज ऑन। तो कितने वेरियस टाइप ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इकोनॉमिक में देखे जाते उसके बारे में अब हम देखने वाले। सो फर्स्ट है फिजिकल टेंजेबल गुड्स एंड इनटेंजेबल गुड्स। सम गुड्स हैव फिजिकल एग्जिस्टेंस लाइक बॉल, बैट,
television, refrigerators, stove, mobile phone and so on. They can be measured, whereas some goods do not have physical existence, cannot be measured cardinally, and those are called services. For example, education, medical consultancy, renditions of music, cooking and so on. सो फर्स्ट टाइप्स ऑफ गुड्स की अगर हम बात करते हैं तो टेंजेबल यानी फिजिकल एंड नॉन टेंजेबल यानी नॉन फिजिकल गुड्स, जिसे टच या देखा जा सकता है उसे टेंजेबल, और जिसे फील किया जा सकता है और टच और देखा नहीं जा सकता है उसे कहीं ना कहीं इनटेंजेबल बोला जाता है। गुड्स जिसे कि फिजिकल एग्जिस्टेंस हो, जैसे कि बॉल हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, बैट, टेलीविजन, रेफ्रिजरेटर, तो ये लोगों को काउंट भी कर सकते हैं, किसी के घर पे कितना फ्रिज है, एक दो, इस तरीके से काउंट भी किया जा सकता है, मेजर किया जा सकता है, उसे फिजिकल गुड बोला जाता है। बट कुछ गुड्स जिसे फिजिकली एग्जिस्टेंस ना हो, जिसे देखा नहीं जा सकता है, छुआ नहीं जा सकता है, सिर्फ फील किया जा सकता है, उसे सर्विसेज बोला जाता है। जैसे एजुकेशन मैंने बोला, मेडिकल कंसल्टेंसी, उसके बाद रेंडिशन ऑफ म्यूजिक, अगर आप म्यूजिक सुनो, ठीक है, तो आप बोल सकते हो कि आपने म्यूजिक में कितने % एंजॉय किया, आप ये बोल सकते हो मैं खुश हुआ, मेरे को अच्छा लगा, दैट टाइप ऑफ फीलिंग यू कैन रिवल, बट यू कैन नॉट गिव द मेजरमेंट। सो रेंडिशन ऑफ म्यूजिक एंड कुकिंग, ये सारी चीजों को नॉन टेंजेबल गुड्स या सर्विस गुड्स भी बोला जा सकता है। नेक्स्ट इट इज इकोनॉमिक गुड्स एंड नॉन इकोनॉमिक गुड्स। Goods which do not command exchange value are called non-economic good. They are abundant in supply and do not go through the economic process of production and distribution. They are consumed by people, for example, sunlight, air and so on. Goods which are command and exchange value in the market are called economic good. They command an exchange value as they are scarce in supply in relation to the demand and supply. They can be held under कंट्रोल। ओके, सो यहाँ पे नॉन इकोनॉमिक एंड इकोनॉमिक गुड कंप्लीट होता है। व्हाट इज नॉन इकोनॉमिक एंड इकोनॉमिक गुड? जो गुड्स को एक्सचेंज करने में कोई पैसे ना लगते हो, कोई चार्ज, कोई एक्सचेंज वैल्यू ना लगते हो, उसे नॉन इकोनॉमिक गुड बोला जाता है। जिसकी सप्लाई बहुत ज़्यादा है, फॉर एग्जाम्पल हमने क्या देखा, जिसको कोई प्रोडक्शन प्रोसेस में नहीं जाना पड़ता है, जिसकी डिस्ट्रीब्यूशन सबको मिलता है, जैसे सनलाइट ले लो, एयर ले लो, रेन ले लो, तो ये सारी चीज़ों की अबेंडेंट सप्लाई होती है, इसमें कोई हमें चार्ज नहीं लेना पड़ता है, ना देना पड़ता है, तो इसे नॉन इकोनॉमिक गुड माना जाता है। अब गुड्स जिसे एक्सचेंज करने के लिए पैसे दिए जाते हो, फॉर एग्जांपल ये पेन हम कब से देख रहे हैं, ये पेन को खरीदना है तो हमें उसके लिए पैसा देना पड़ेगा, फ्री में तो हमें कोई देगा नहीं। क्यों? क्योंकि इसकी डिमांड है और ये कम बनते, इसको प्रोडक्शन प्रोसेस में जाना पड़ता है, इसको बनाने के लिए खर्चा करना पड़ता है, इसलिए बेचने वाला इसको फ्री में नहीं बेचेगा, जबकि सनलाइट भगवान हमें डायरेक्ट देते, इसीलिए उसे नॉन इकोनॉमिक गुड माना जाता है। सो इकोनॉमिक गुड के अंदर मार्केट में जिसका एक्सचेंज वैल्यू हो, जिसके लिए हमें पैसे पे करके खरीदना पड़ता, जो ऑलरेडी सप्लाई में कम दिखता और जिसका डिमांड मार्केट में ज्यादा हो, उसे कहीं ना कहीं इकोनॉमिक गुड माना जाता है। इन शॉर्ट, जिसके लिए पैसे पे करना पड़ता है वो इकोनॉमिक गुड, और जिसके लिए पैसे नहीं पे करना पड़ता है वो नॉन इकोनॉमिक गुड माना जाता है। Next it is durable goods and perishable goods. Goods which comes to the market can be durable or perishable. Durable goods can be used for a long term of time and repeatedly. For example, shoes, clothes, television, refrigerator and so on. Perishable goods cannot last for a long time and are consumable only once. For example, milk, fruit and सो ऑन। सो यहाँ पे ड्यूरेबल गुड्स एंड नॉन ड्यूरेबल गुड्स भी बोल सकते हैं एंड पेरिशेबल गुड्स भी बोल सकते हैं। नॉन ड्यूरेबल यानी बहुत ज़्यादा टाइम ना चले, उसे हम पेरिशेबल गुड्स भी इकोनॉमिक में बोलते हैं। सो गुड्स जो भी मार्केट में आते हैं वो या तो ड्यूरेबल होते हैं या तो नॉन ड्यूरेबल यानी पेरिशेबल होते हैं। ड्यूरेबल गुड्स का मतलब जो लंबे टाइम तक बिगड़े बिना रह सकता है और उसे हम रिपीटेडली यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने अगर शू खरीदा, आपने अगर शू को अच्छे से मेंटेन किया और उसको आप 2 से 3 साल तक चला सकते हो, ठीक है, तो वो ड्यूरेबल हुआ, यानी वो लंबे टाइम तक चल सकता है। क्लॉथ इवन वो भी हम 1 साल 2 साल चला लेते हैं। टेलीविजन तो 10 साल 15 साल चलता है। रेफ्रिजरेटर भी 8 साल 10 साल 12 साल, इस तरीके से। इवन मैं अभी एग्जाम्पल में ये पेन यहाँ पे मैं इसलिए लेके ही बैठी थी एग्जाम्पल में, इसको बार बार आज यूज करने के लिए। सो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये ले रही हूँ तो इसको भी कम से कम मैं 2-3 महीने चला सकती हूँ। तो इस तरीके से कोई भी चीज जो हम खरीदते हैं वो अगर लंबे टाइम तक यूज किया जाए,
रिपीटेडली यूज किया जा सकता है तो उसे ड्यूरेबल गुड्स बोला जाता है। नॉन ड्यूरेबल या पेरिशेबल गुड्स का मतलब जो लंबे टाइम तक नहीं रह सकता और उसको जल्द से जल्द कंज्यूम कर सकते हैं और एक या दो बार की कंज्यूमशन ही वो खत्म हो जाता है। जैसे दूध, ठीक है, मिल्क, फ्रूट। अभी आप एग्जांपल फ्रूट ले लेते हैं, 1 kg फ्रूट हम लाए, ठीक है, अभी मैंगोज ज्यादा चल रहे तो मैंगोज लाए तो 2 से 3 मैंगो आए तो हम उसको एक ही बार खा सकते, एक मैंगो को एक ही बार खा सकते, दोबारा उस मैंगो को खा सकते नहीं। बट फॉर एग्जांपल ये पेन को आज हमने लिखा, दोबारा कल भी लिख सकते, परसों भी, जब तक इंक खत्म नहीं होता तब तक हम इस पे लिख सकते। इस तरीके से पेरिशेबल गुड मतलब जो जल्दी खराब हो जाए, जैसे दूध, फ्रूट, वेजिटेबल्स, ये अगर आप यूज नहीं करोगे तो खराब हो जाएगा। बट शूज, क्लोथ, टेलीविजन ये खराब नहीं होगा, ऐसे ही रहेगा, जब जब यूज करोगे तब आप उसको यूज कर सकते हो। इस तरीके से पेरिशेबल गुड्स मतलब जो लंबे टाइम तक ना चले, जिसका ड्यूरेशन 1 या 2 दिन का हो और 1 या 2 बार ही आप उसको कंज्यूम कर सकते हो। जैसे दूध लाए 1 पैकेट, आप सुबह 1 चाय पी सकते हो और दोपहर को 1 चाय पी सकते हो अगर आप 1 या 2 लोग हो, और 5-6 लोग हो तो एक ही बार चाय में वो खत्म हो जाएगा। तो या तो आप उसको वंस यूज कर सकते हो या उसमें से थोड़ा बचा के ट्वाइस यूज कर सकते हो, बट वंस ओनली यू कैन यूज। एक बार 1 ग्लास दूध लेके एक ही बार पी सकते, दोबारा वही ग्लास दूध नहीं पी सकते, दूसरी ग्लास दूध लेना पड़ेगा। इस तरीके से पेरिशेबल गुड सिर्फ एक ही बार यूज हो सकता है और वो भी लिमिटेड टाइम पीरियड, 2 या 4 दिन से ज्यादा नहीं होता। मोस्ट प्रोबेबली दूध वगैरह तो एक ही दिन में, फ्रूट भी 1 या 2 दिन रहता है, तो इसका टाइम पीरियड जो होता है वो बहुत ही कम माना जाता है। नेक्स्ट इट इज प्राइवेट गुड्स एंड पब्लिक गुड। Goods are classified as private good and public good based on their ownership and nature of use. So goods को कैसे private good या public good बोला जा सकता है, तो उसकी ओनरशिप और उसकी जो यूज का नेचर है उसके ऊपर ही हम उसको प्राइवेट या पब्लिक गुड बोल सकते हैं। कैसे बोल सकते हैं? लेट अस रीड द पैराग्राफ एंड नो दैट इन अ वेरी डिटेल्ड मैनर। Private goods are good which can be possessed and owned by a private individual. He takes all decision regarding these goods. These goods possesses the characteristic of exclusivity and competitiveness. Exclusivity means once a good is owned and being used by one individual, another individual cannot possess and use it at the same time. And individual having to compete for the ownership of this good. For example, a packet of biscuit purchased by one child in the market which has competition among buyer comes under the ownership of this child. The another child is excluded from having the same packet of biscuit. The individual who pays the price gets the good and other cannot have the same unit. For example, one who does not pay price for a mobile phone does not get it. प्राइवेट गुड का मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल कोई भी गुड जो ओनरशिप एक प्राइवेट इंडिविजुअल के हाथ में आ जाता है, जिसकी हक एक प्राइवेट इंडिविजुअल में आ जाता है, वही उसका पूरा डिसीजन ले सकता है। हम कब से एग्जांपल में ये पेन देख रहे हैं, ठीक है, हम एग्जांपल में भी यही पेन रखते हैं। दुकान में ये एक पेन का बॉक्स रखा हुआ है, खरीदने के लिए जब हम जाते हैं तो 6 लोग खरीदने के लिए खड़े हैं। जब 6 लोग खरीदने के लिए खड़े हैं तो सबसे पहले मैंने इसके लिए पैसा दिया और दुकान वाले से ले लिया। जब तक ये दुकान में था तब तक दुकान वाले की ओनरशिप में था, तब तक 6 लोग इसको खरीद सकते थे। बट जैसे ही ये मेरे पास आया, ये किसका हुआ? पेन मेरा हुआ। अब ये मेरा यानी इसकी ओनरशिप मेरा। तो प्राइवेट एक इंडिविजुअल की ओनरशिप में जब कोई प्रोडक्ट आ जाता है, इसको लिखना है कि रखना, इसका डिसीजन मुझे करना है। तो यहाँ पे एक्सक्लूसिविटी का पोर्शन देखा जाता है एंड कॉम्पिटिटिवनेस, कॉम्पिटिशन। अब इसके साथ कंपटीशन के लिए कोई मेरे सामने नहीं है क्योंकि अब ये मेरा हो गया। सेकंड, जितने 6 लोग खड़े थे उनमें से मैंने ले लिया, इसलिए बाकी के 5 लोगों को ये सेम पेन नहीं मिल सकता। वो चाहे तो दूसरा पेन इसी कंपनी का खरीद सकते, बट ये पेन तो मेरी है। इस तरीके से एक्सक्लूसिविटी का मतलब जैसे ही एक प्रोडक्ट कोई खरीद लेता है तो दूसरा इंडिविजुअल जो उस प्रोडक्ट के लिए कंपटीशन में करा था वो वहां से हट जाता है और जिसकी ओनरशिप हुई वो प्रोडक्ट उसका हो गया। यहाँ पे सेम एग्जांपल एक बिस्किट पैकेट का दिया गया है। एक बिस्किट पैकेट लेने के लिए 3 बच्चे खड़े हैं, जिसमें से एक बच्चे ने पैसे देके वो बिस्किट पैकेट ले लिया, मतलब वो बिस्किट पैकेट उसका हो गया। बाकी के 2 बच्चों को अपने आप ही हट जाना पड़ता है क्योंकि पैसे जिसने पे किया उसका वो प्रोडक्ट हो जाता है, वो उसकी ओनरशिप में आ जाता है, उसके रिलेटेड वही डिसीजन ले सकता है। अगर वो दूसरे बच्चे को भी बिस्किट पैकेट चाहिए तो वो वैसा ही दूसरा एक यूनिट ले सकता है, बट इस बच्चे के पास जो बिस्किट पैकेट है उस पर वो उसका हक नहीं जता सकता। इन शॉर्ट, प्राइवेट गुड का मतलब आपका खुद का घर है, वो किसका है? आपका है।
आपका खुद का घर है, वो किसका है? वो आपका है। नेक्स्ट, आपका खुद का गाड़ी है, वो किसका है? आपका। अगर बाजू वाला आके बोले ये मेरा गाड़ी है, मैं चलाऊंगा, आप चलाने दोगे? नो। सो प्राइवेट गुड का मतलब जिसके लिए आपने पैसा दिया और आप ही उसके ओनर, आप ही उसका डिसीजन ले सकते हो, वो प्राइवेट गुड माना जाता है। सो लेट अस सी व्हाट इज द पब्लिक गुड. On the contrary, public good can be used by many individuals at the same time. They possesses the characteristic of joint demand and collective consumption. Such goods are jointly demanded by many people. If one individual use it with the other cannot be excluded from it, and in this way they are collectively consumed. Hence these are called public goods. They are either provided by the government for all or some people pay for it together. For example, a public garden or the garden of a housing society. In short, private goods are owned and used by private individual, and public goods are owned by the government or group of people and used collectively. उसी के ऑपोजिट में पब्लिक गुड का मतलब जो एक ही टाइम पे कोई भी इंडिविजुअल यूज कर सकता है. फॉर एग्जाम्पल, इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक होती है वो जॉइंट डिमांड होता है और कलेक्टिव कंजम्पशन, यानी कोई भी उसको यूज कर सकता है, उसे पब्लिक गुड माना जाता है. फॉर एग्जाम्पल, आपके यहाँ हर एक जगह पे गवर्नमेंट का एक गार्डन होता है, पब्लिक गार्डन होता है. अगर आप उसके अंदर जाते हो तो आप उसके अंदर गए तो वो आपका हो गया? नहीं, वो तो गवर्नमेंट का है. उसके अंदर कोई भी जा सकता है और कोई भी यूज कर सकता है. इस तरीके से जो भी गुड गवर्नमेंट या पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल से कलेक्ट किया गया और जिसपे सबका हक लगता हो, उसे पब्लिक गुड माना जाता है. अगर आप उसमें यूज करो तो दूसरे की हक उससे हटता है, ऐसा नहीं हो सकता. जैसे पब्लिक गार्डन है, आप वहां बैठने जाते हो, बेंच पड़ी, आप उस बेंच में बैठे हो, बाजू में जगह होगी तो दूसरा भी आके बैठेगा. आप उसको ये नहीं बोल सकते मैं बैठा हूं तो तुम मत बैठो, क्योंकि वो पब्लिक गुड है. इसी तरीके से रदर देन दैट हाउसिंग सोसाइटी, जैसे आपको पता है आपका जो घर होगा वहां पे कॉमन पार्टी प्लॉट होगा या कॉमन गार्डन होगा. उस गार्डन के अंदर अगर आप जाते हो तो दूसरे घर वाले भी उसके अंदर आ सकते हैं, आपके बाजू वाले भी आ सकते हैं. आप ये तो नहीं बोल सकते हो कि मेरा गार्डन है आप नहीं आ सकते हो. वो आप कब कर सकते हो? आपके घर के अंदर ही बाजू में आपने एक गार्डन किया हो तो आप वो कर सकते हो कि मेरा पब्लिक गार्डन है, आपने प्राइवेट गार्डन है, आप नहीं आ सकते हो. बट जो कॉमन है वो सबके लिए कॉमन है और कॉमन गुड्स को कहीं ना कहीं पब्लिक गुड्स बोला जाता है. इन शॉर्ट हम ये बोल सकते हैं जो भी गुड्स प्राइवेट के थ्रू ओन अप किया जाता है, एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल के थ्रू ओन अप किया जाता है, वो प्राइवेट गुड हो जाता है. और दूसरा जो गवर्नमेंट या ग्रुप ऑफ पीपल के थ्रू ओन अप किया जाता है और जिसमें सबका हक लगता हो, उसे जो है पब्लिक गुड बोला जाता है. सो नेक्स्ट इट इज कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर्स. तो ये वाला टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो पे देखेंगे. सो आज का टॉपिक हम यहाँ तक रखेंगे. आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड द पोर्शन इन अ वेरी वेल मैनर. सो नाउ लेट अस मूव ऑन विद अ शॉर्ट समराइजेशन ऑफ द टॉपिक दैट वी हैव सीन टुडे. So students, I hope that you all have understood the today's portion in a very well manner. So today we have seen about the goods and services, and after that we have seen the types of goods in a very detailed manner. So now let us have a short summarization or revision of the portion that we have seen today. First of all, what is good? Good means any product that we can, or any commodity that we can touch and feel, rather than that which have a physical existence is considered as a good. So the products which are tangible and which can be touched and seen and felt, even which is used to satisfy our needs and consumption, is considered as goods. Rather than that, services. Service is little contrary, means opposite of the goods. The physical appearance of such product is not there. It cannot be seen, it cannot be touched, but it can be felt or experienced as a satisfaction while consuming. For example, taking a lecture from a teacher, getting the knowledge of a particular subject, and eating food. At that time we are having a cooking of a food. That all purpose can be considered as a service. Even when you are traveling on a bus, the traveling portion that you feel is considered as a service. When you visit a doctor and doctor is checking you, that portion, the medical consultancy, is also considered as a services. So in this manner we have seen that the goods can be rationally, cardinally measured up, but the services cannot be measured up. The goods can be numerically, it can be quantitatively and quantitatively, it can be counted up, but services cannot be counted up.
but in service is time that we attain for a service that can be measured up. In this manner we have seen it in a very detailed portion. After that we have seen the types of goods, in which we have first seen the tangible goods and intangible goods, or physical goods and intangible goods. So what is physical good? Physical good means a good which can be seen up and touched and felt. For example, cloth, shoes, these all things are considered as the tangible goods. Intangible goods means the goods which cannot be seen but it can be consumed for our inner satisfaction. The satisfaction can be generated from that portion is considered as the goods, are which are intangible. Even it can be said as services. For example, we see in the medical consultancy, education, so these things can be said up as the services or intangible goods. After that we have seen the economic good and non-economic good. So what is economic good and what is non-economic good? Economic good means a good which is purchased by exchange value by monetary purpose is considered as economic goods. For example, if we are giving money and purchasing something, it means it is having the exchange value. The goods which are having the exchange value, that is considered as economic good. For example, if you are buying a chocolate, it is having the exchange value of 5 rupees or 10 rupees. For your satisfaction or consumption, when you are paying and buying something, it is considered as economic good. Second is non-economic good, that is very abundant and unlimited supply is being seen up. All the people use it commonly. It does not has any exchange value. For example, sunlight, air. So these things are considered as non-economic good. After that we have seen durable goods and non-durable goods. So if you are seeing durable goods and non-durable goods, durable goods means the goods which have a long life is considered as durable good. For example, we have seen the shoes, clothes which can be used repeatedly for a long period of time is considered as a durable good. But perishable good or undurable good means the good which cannot be used twice, which can be used once only, and which does not have a long time period, which has a short duration of life, is considered as the non-durable good. For example, in perishable goods or non-durable goods, we have seen milk, fruit and the dairy products. You know that it gets easily rotten up, jaldi se bigad jata. So in this manner we can say that the life of which product is not more, or which has a very less portion of life, is considered as perishable good. After that we have seen the private good and the public good. So what is private good? Private good means a good which is owned by an individual. The ownership of that particular good goes to a particular individual. Decision regarding that particular goods can be taken up by that person only. When he is taking that ownership, at that time remaining all people are excluded from that ownership, is considered as private good. So in private good, exclusivity is been seen up and competitiveness is been seen up. Means the people, those who have not bought it, they are above or far from the competition of that product. For example, we have seen that if there is a box of pen and there are 5 people to buy, the one who is paying the money and buying it and owing it is considered as its owner, and the remaining 4 are excluded for that portion. If they want to buy, they can buy another pen, but that same pen cannot become theirs. So in this manner this is considered as the private good. After that we have seen public good. Public good means a good which is used by all over the people, they are living surrounding. For example, we have seen that is owned by government, but the authority or the portion of using can be done by anyone. For example, if you are seeing a public garden, if you are going to a public garden, if there is a bench to sit, you can also sit and other people can also sit. If you are sitting, it does not belongs to you. So here the ownership is not transferred. Here the ownership is with the hand of the government or particular group of people. But when one is owing it, the other is not excluded from the good. It is considered as public good. For example, if you are living in a society, there is a common party plot, there will be a common party plot. So that common party plot belongs to the whole people living in that particular society. So if you are going there, the neighbor can also come there. You cannot say that the neighbor cannot come there because it is a public good. So in this manner we can say that the private good means the good which is owned by particularly one person, and the owner
ownership and right belongs to one person, but a public good means the ownership belongs to a group of people or the government, and it is not owned by any individual. Everyone has the right to use it, is considered as public good. So up till this we have seen in a very detailed manner. I hope you all have understood the portion in a very better manner. Rather than that, I hope that this video was an interesting video for you all. Until the next interesting video is not coming, I hope you all will be fit, fine and safe at home. Until that, Jai Hind and Jai Bharat to everyone.